So if the event is empty, the probability will be 0. If all the possible events you are taking as sample space, its probability will be 1. And in normal problems, the probabilities will be lying between 0 to 1. Either it will be 0, it may be a little bit ahead, 0 0.1, 0 0.13, 0 0.99. Okay, but okay, you may have 1 also, you may have probability as 0 also, but all other probabilities will be lying between 0 to 1. Your answer will not go beyond 1. Your answer will not come before 0. Before 0 means negative. No negative answer and no answer like 1.1 and so on and so forth on the right side of 1. Well, gentlemen, this is your exercise number 4.1 in the book. देखिए, I am doing this question in front of you, question number 10. अब आपको जो मैं समझा चुका हूँ, the author is trying to see whether you have got this concept or not. This is question number 10. Reading here. A probability experiment is conducted. Which of these cannot be considered a probability outcome? एक probability experiment किया गया और पूछ रहा है कि ये probability outcome हो सकता है या नहीं हो सकता. आप बताइए. So the outcome is 2/3. A part. क्या ये probability आ सकती है हमारे पास? जी. Anybody who can answer. 2/3 को अगर डिवाइड करें ना 2 को 3 से तो क्या आ जाता है 0.6666. तो is it coming in the range of 0 to 1? हो रहा है ना? Yes, sir. तो फिर yes, this outcome is possible. Part A is possible as a probability outcome. Done. Part B इसके नीचे है 0.63 may possible or may not. So it is possible. It is also possible. It is also. Part C -3/5. Possible? Possible. Not possible. I told you, you will never. Sir, it will negative value. Negative है तो बात ही खत्म हो गई. बाकी तो आगे देखे ही नहीं ना. Minus are not possible. Minus values will not be possible as the answer for probability. D part 1.65. These are not possible. Possible, not possible. No sir, क्योंकि 1.65 है 0 to 1 देखेंगे. 0 to 1 देखेंगे. 1 से 1 भी इंच आगे चला गया तो ये Possible, sir. तो 1.65 is again not possible because Possible, it is sir. not possible. 1.65 not 1 से ऊपर है. 1 से ऊपर है इसलिए. E bar -0.44 Not possible. again Not possible. not possible. Why? Reason? Sir 0 से नीचे है. No sir, negative value है. Negative में है. Negative. F part 0 answer. Possible is 0. Possible है. Yes. G part 1 Possible is. possible है. मैंने कहा ना 0 से 1 तक ठीक है. Then H part 125%. बोले? Nobody is responding. Sir not possible. Not possible. देखिए 125%. सुन ले. Percent means you divide that number by 100. Per means divided by. Cent का मतलब है 100. So 125 हो जाएगा. by 100 will be 1.25. 1.25. गलत हो जाएगा ना. 24%. Sir this is possible. This is possible. Yes. ठीक है. This is possible sir. 24% means 0.24. 0.24. Coming to this question number 12. Well, reading very simple question, very nice. इस पे आप लगाएंगे classical probability. देखिए, rolling a dice. If a die is rolled one time, find this probability. Getting a 2. What is the simple space of rolling a dice? बताइए, जल्दी बताइए, अभी आपने पढ़ा है. All possible outcomes of rolling a dice is what? 1, 2, 3, 4, 5, 6. नहीं याद हुआ अभी तक.
This is a sample space. So getting a 2, how many 2s you get in this set? Only one? Yes Only or one. not? Only one is 2. हाँ, आप जब डाइस को रोल करते हैं तो कितनी फेजेस है 2 वाली? एक ही होती है ना? सर एक ही एक है। होती है। हाँ, तो फेवरेबल केस 1 हो गया, वो ऊपर लिखेंगे, और टोटल केसेस कितने हो गए? 6, वो नीचे लिख देंगे। तो 1/6 इज योर आंसर। इसने आंसर आगे दिया हुआ है, गेटिंग 2 के बाद जो 1/6 लिखा है, these are the answers. Okay, next, getting a number greater than 6. 6 से बड़ा कोई नंबर होता है डाइस के ऊपर? नो सर। नहीं। तो जब इवेंट इज श्योर नॉट टू अकर, 6 से बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता, तो नल सेट हो गया ना हमारा ये। जी सर। इवेंट जो हो गया वो नल सेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द नल सेट अभी क्या बताया था मैंने, क्या आंसर आता है? फिर क्या आता है आंसर? 0। जीरो। When even is sure not to occur, its probability will be 0. Next case, getting an odd number. How many odd numbers are there in the sample space of a dice? One dice. 1 2 3 4 5 6 में कितने odd number हैं? जल्दी बोलो। आप लोगों को even odd number पता है या नहीं पता है? नहीं पता। 3 है। तीन है ना सर, 2 4 6। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और कहते हैं 3 5 1 3 5। 135 अक्ल सर। सलीम भी इस्तेमाल करना चाहिए। अक्ल सलीम अपने पास ना हो, सॉरी सर। सलीम से जाके अकल ले लें, उसको कहते हैं अक्ल सलीम। 1 3 5। हाँ, और इवन नंबर बोल रही है और कह रही है ऑड नंबर, ऐसा थोड़ी। तो देयर आर 3 ऑफ द ऑड नंबर्स। 3 बाय टोटल केसेस कितने हैं? 6। 3/6 क्या आंसर आएगा? 1/2 या 0.5। ओके, अच्छा जी, अब बताइए, गेटिंग अ 4 और एन ऑड नंबर, ये कैसे होगा? अब दो बातें आ गई, या 4 आ जाए या ऑड नंबर आ जाए। 4 की तो एक फेस हो गई, एक इवेंट हो गया, और ऑड नंबर के 3 इवेंट हो गए, और 4 ऑड नंबर में नहीं आता। कितने हो गए टोटल केसेस? कितने हो गए? 4 केसेस आर सच विच आर फेवरिंग योर क्वेश्चन। एक तो फेस 4 हो गया और 3 हो गए ऑड नंबर। सबको आपने टोटल करना है फिर, तो डिवाइडेड बाय 6, दैट इज द टोटल सैंपल पॉइंट्स। 1 और 3 को ऐड करेंगे तो आप आंसर कर लीजिएगा, 4/6 का आंसर आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट केस, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। कितने होते हैं आपके डाइस के ऊपर नंबर? बताएं, जल्दी बताएं। 6 हाँ, 6 कहाँ से कहाँ तक? 1 से 1 to 6 गेटिंग अ नंबर 1 through 6 हो गया ना सर। हाँ, 1 to 6. तो 7 से लेस कौन कौन से नंबर हुए? 6 हो गया सर। यही 6 हो गए। 5 हो गया। फेवरेबल 6 हो गए, डिवाइडेड बाय भी 6 हो गया। 6 डिवाइडेड बाय 6 क्या आंसर आएगा? 1 आएगा, नहीं आएगा? 1 जी सर। ई पार्ट का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है 1। एफ पार्ट, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब बताएं, शाबाश, जल्दी से, कॉमन सेंस की बात। नंबर ग्रेटर देन भी हो और इक्वल टू 3 भी हो। बोलो कितने फेवरेबल केसेस हुए? इतना गहरे सोच में पड़ जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी तो आपसे कभी भी सॉल्व नहीं होगी भाई। 1 से लेके 6 तक आपके सामने लिखे हुए हैं नंबर, 1 to 6 आपने लिखा है सबने, वो सैंपल स्पेस है। Yes. तो 3 एंड ग्रेटर कितने, कौन कौन सा नंबर है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कितने फेवरेबल केस हुए? 4। 4 नंबर हो गए ना। देयर आर 4 डिजिट्स व्हिच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एंड अबव। तो 4/6 जो हमने ऊपर भी किया था, आंसर आ गया 2/3। एंड द लास्ट पार्ट, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 एंड एन इवन नंबर। बोलो नंबर ग्रेटर देन 2 में कौन कौन सा आता है? 3 4 5 4 5 6 6, ठीक है। 3 4 5। 6, और वो कह रहे इवन नंबर भी लेना है इसके अंदर। इवन नंबर में कौन सा आएगा? एक फेस और अभी आ गया ना, 2 नहीं आ जाएगी? जी सर। 2 भी तो इवन है ना। ये सब में 2 सेट्स बना लें। एक सेट हो गया आपका नंबर ग्रेटर देन 2, उसमें क्या आएगा? 3 4 5 6, 4 3 डिजिट तो 4 5 6। ठीक है, ये पहला सेट हो गया।
और दूसरे सेट में कह रहा है इवन नंबर। इवन नंबर में क्या क्या है? 2 4 6। 4 6। ठीक है, हमने 4 6 तो पहले ले लिया है ना, जी सर। ले लिया ना, जी सर। तो उनको तो दोबारा नहीं लेंगे, मैंने कहा था रिपीटेशन नहीं करनी। 2 नहीं लिया था वो ले लें हम। तो 4 डिजिट्स वो और ये मिलके 5 हो गए। आई थिंक दिस इज, चेक लें देखें, ये तो मैंने शायद इसको आपको सॉल्व करके दिखाया है। लेट्स सी इफ देयर इज अ सॉल्यूशन। यस, नहीं ये क्वेश्चन 13 मैंने सॉल्व किया। क्वेश्चन 12 तो बड़ा आसान था, वो आपने खुद ही कर लिया, सिंपल। बहर that I have done. Now I am coming to question number 13. पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन 13 में है क्या, इसको पढ़ लें। This is your question number 13 on the left side. Rolling 2 dice. If 2 dice are rolled one time, find the probability of getting these results. Is sum of 9, is sum of 7 or 11, doubles, sum less than 9, sum greater than or equal to 10. This is your question number 13. But nevertheless, the author is asking you to make a interactive. मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लास हो रही है, अब ब्रेक होगी उसके बाद में दो मिल गए। हेलो, दो क्वेश्चन तो मेरे। अच्छा अभी मैं देखता हूँ बाकी कौन कौन सकता है, ठीक है। और किसी दोस्त से भी कहो ना, कौन सी मदद जैसे है सब जैसे हाँ, मेरी क्लास में होती तो मैं भी सुन रहा हूँ। चलो ठीक है, ओके ओके, बस बस अब मेरी क्लास चल रही है, तुम लोग जरा काम करो, ठीक है। Now gentlemen, see its solution I have done for you. देखिए यहाँ पे question number 13. This is the sample space I have made, that I showed it in the beginning also, that you take dice number 1 vertically, 1 to 6, and then dice 2 horizontally, and all these possible outcomes. There are 36 possible outcomes in the sample space of rolling 2 dice. Now at the first stage in part A, the author is asking you find the probability that a sum of 6, the sum 6 of the rest check कीजिए। If we sum up the two events, ये इसको sum करना है, ठीक है। तो 6 कहाँ कहाँ आपको मिल रहा है सब, ये देखिए 1 5 2 4 3 3 4 2 and 5 1. From this one, this line, this of the line, कितने cases हैं which are favoring the sum 6? 1 2 3 4 5. इसके अलावा आप ढूंढ लें पूरे सैंपल स्पेस में आपको सम 6 नहीं मिलेगा other than these 5 events. The favorable cases, number of the events which are favoring your case, this is 5, and total cases are 36. The answer is 5 by 36. इसको आप डेसिमल में कैलकुलेट कर लीजिएगा। बेटर यू राइट योर आंसर इन द डेसिमल, मैंने नहीं लिखा, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज द डबल्स। नाउ चेक वेयर आर यू गेटिंग द डबल्स। कुछ लोग डबल का ये मतलब लेते हैं ये दोनों पे डबल आ रहे हैं, वही नंबर डबल डबल आ रहे हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। ये हो गया आपके पास दोनों नंबर डबल डबल आ रहे हैं, तो 6 आर द फेवरेबल केसेस, 6 by 36, आंसर इज 1. इसको भी आप निकाल लीजिएगा डेसिमल में। नेक्स्ट इज सम ऑफ 7 और 11। अब देखिए पहले 7 के लिए कौन कौन से केसेस है। 7, ये देखिए लाइन में जो कर्सर लेके घुमा रहा हूँ, नोट करिए 1 6 2 5 4 3, ये भी 7 है, ये भी 4 3 7 5 2 7 6, 1 2 3 4 5 6. 6 are the cases where you are getting a sum 7.
Done. 6 cases. And now 11. Sum should be 11. देखिए ये दो केसेस हैं, 5 6 and 6 5. इन दोनों को जब हम सम करेंगे 11 आएगा, यहाँ भी 11 आएगा. तो 2 cases are such. आपने 11 नहीं लिखना है. You are to write how many events are such. These are the 2 events where the sum is 11. There are the 6 events where the sum is 7. The total events are 8, which are favoring our case. And net total in the points in the sample space are 36. 8 by 36 means 2 by 9. इसको भी डेसिमल में कीजिएगा. Next point, sum greater than 9. अब आइए, greater than 9. देखिए, अगर मैं ये लाइन लगाऊं तो ये सारे 10 है. 4 6 5 3. ये तो हमने नहीं लेना है, ग्रेटर लेना है. तो ये 11 आएगा या 12 आएगा. ठीक है ना. तो कितने केसेस हैं which are greater than नहीं 9. अच्छा 9 में तो 10 भी आएगा ना. देखिए 9, ये तो 9 से ग्रेटर, एक ये है 9 से ग्रेटर, ये केस है 9 से ग्रेटर, ये केस, ये भी. दिस ट्राइंगल लास्ट में ये जो बन रही ना ट्राइंगल, हाउ मेनी केसेस आर फेवरिंग? देयर आर 6 इवेंट्स. देख लिया आप सबने? तो सब लोग सो रहे हैं या कुछ बोले ना, एक्टिवली बताएं. वंस आई पुट ए क्वेश्चन, हाउ मेनी केसेस आर देयर व्हिच आर Sir, 6. देयर आर, हाँ, व्हिच आर ग्रेटर देन 9. So 6 by 36, answer is 1 by 6. And the last part, sum less than 4. Check करके बताओ. How many are the cases which are less than 4? 4 नहीं लेना है, less than 4 लेना है. ठीक है ना. ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये नहीं लेना. इससे लेस क्या होगा? 3. 3 वाला, 3 वाला और 2 वाला. These 3 cases, only 3 are the events which are favoring our case that sum is less than 4. 3 by 36. है? अच्छा, लेस देन, अच्छा इक्वल टू भी लगा दिया है ना. अगर खाली लेस देन होता तो फिर 3 होते, इक्वल टू भी है तो 36. देख लीजिए दोबारा. लेस देन और इक्वल टू मींस 4. ये भी है ना 1, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4. 3 इवेंट्स इज नहीं 6 हो गए ना. 1 2 3 4 5 6. हाँ, हाउ मेनी इवेंट्स? ठीक है ना. 1 3 2 2 3 1 2 1 1 2 and 1 1. ये सारे या तो 4 है या 4 से लेस है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना. तो कितने केसेस फेवरेबल हो गए हमारे? फेवरेबल केसेस आर 6. 6. एंड टोटल केसेस कितने होते हैं जो सैंपल पॉइंट्स में होते हैं? देयर आर 36. 6 by 36, आंसर इज 1 by 6. इज दिस क्वेश्चन क्लियर? Yes, ये sir. क्वेश्चन क्लियर हो गया? कोई जवाब नहीं आ रहा. जी सर. Yes, sir. देखें, Yes sir, clear हो गया सर. सूरज ग्रहण लगने वाला है. इससे पहले कि आपके दिमागों को ग्रहण नहीं लगना चाहिए. ठीक है. अब हम पढ़ाई में जारी रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन भी करता हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 13 देखो, पहले पढ़ लेते हैं. 13 तो किया ना मैंने. या लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14. Drawing a card. If one card is drawn from a deck, find the probability of getting these results. देखिए, अगर डेक से हम एक कार्ड निकाल रहे हैं, अभी आपको सैंपल स्पेस कार्ड्स का बताया था. There are 4 suits. Total cards are 52. लिख लें कहीं, आप किताबें कम पेंसिल लेके बैठा करें. कितने कार्ड्स होते हैं डेक में? 52. तो सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए? 52. ओके. और इसमें रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 26. ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? वो भी 26. अच्छा, कुछ और बता दूं. इसमें जोकर होता है, क्वीन होता है और किंग होता है. अगर किसी ने ताश खेला उसको तो आसानी से समझ में आ जाएगा, और जिनको नहीं पता है वो भी सुन लें. इनको हम फेस कार्ड कहते हैं. इस पे शक्लें बनी होती हैं. जैक यानी जोकर की शक्ल बनी होती है, क्वीन की शक्ल बनी होती है और किंग की. तो हर सूट के अंदर ये 3 कार्ड होते हैं जिनके ऊपर शक्लें बनी होती हैं. दे आर कॉल्ड द फेस कार्ड्स. एंड हाउ मेनी सूट्स आर देयर? 4 सूट्स. 4 into 3, कितने फेस कार्ड होंगे टोटल हर डेक के अंदर? In one deck there are 12 face cards.
ये बेसिक बुनियादें क्लियर हो कॉन्सेप्ट, तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे ना। बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक डेक में कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? जल्दी जल्दी बोलें, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। क्विक क्विक, हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन अ डेक? सर 52 52. How many are red cards? सर 26 13 26. How many are the black cards? 26 26 How many are the face cards? 4 सर 4 La hawla wala quwwata. फेस कार्ड, फेस जिसपे शक्लें बनी होती हैं, जैक, क्वीन, किंग, जैक क्वीन किंग। ये हर एक में सर सर होंगे ना? हर रो में हर रो में ये तीनों जाएंगे, तो 4 रोज हैं ना आपके पास, तो 4 जी सर, तो 4 रो। 4 3 दा सर 16 हो गई। लाहौल 16 लाहौल। It 3 in each row and there are 4 rows. ओके 3 ओके 12 सर। वे 16 क्यों से बोल रहे हो तुम? हाँ, सर मैं 4 काउंट कर रहा हूँ, 12 सॉरी हुआ। सर। 4 नहीं है, 3 है ना। फेस कार्ड्स आर ओनली 3, यस सर। जैक, क्वीन एंड किंग। कभी तुमने राइट ताश सर। नहीं खेली? कभी ताश नहीं नहीं खेली? सर, तभी नहीं तो सर। नहीं जज सर। ना पढ़ाई की है ना ताश खेली, कुछ तो कर लेते। ताश खेलते तो आज काम आ नहीं सर, जाता। पढ़ाई करी है सर, ये ताज नहीं खेली। कहाँ पढ़ाई किया? अच्छा चलो, ओके ओके गुड। देखिए, ये 10 मिनट के बाद हमारा लेक्चर खत्म होगा। देन विल गो फॉर व्हाट, फॉर अ ब्रेक, जैसे आप हमेशा मांगते हैं, है ना। कोई शरीफ आदमी हमेशा यहाँ पे कहता है सर हमें ब्रेक दे दें। ठीक है, 10 मिनट के बाद क्या ख्याल है, 2 सेशन हो जाएंगे ना? 9:32 हो रहे हैं इस वक्त। दिस इज द सेकंड सेशन गोइंग ऑन, तो आफ्टर सम मिनट्स फिर हम ये ऑफ कर, जैसे ये बंद हो जाएगा तो विल गो फॉर 15 मिनट्स ब्रेक। उसके 15 मिनट के बाद, यानी ये आपका 42-45 पे खत्म हो जाएगा। आप 10 बजे पॉजिटिवली 10 बजे आपने वापस आना है। डन? ओके सर। ओके ओके सर। ठीक है, शाबाश। अब आगे चलते हैं। नो आई एम सॉल्विंग, इसमें इस क्वेश्चन में उसने क्या क्या पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि एक हमने कार्ड निकाला एक डेक में से, तो वो प्रोबेबिलिटी उसकी क्वीन है, या वो क्लब है, या क्वीन भी है ऑफ क्लब की क्वीन है, या ए 3 और एन 8 है, ए 6 और अ स्पेड है, अ 6 एंड अ स्पेड है। और एंड का फर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। ये ई पार्ट और एफ पार्ट में अल्फाज सारे वही हैं, एक जगह और लिखा है और एक जगह एंड लिखा है, so keep in mind the difference. A black king, a red card and a 7, a diamond or a heart, and the last part is a black card. चलिए वन बाय वन अटेम्प्ट करते हैं। This is your question number 14. Well, property of an ace. आपको याद है 4 रोज है ना, तो हर रो में एक एक एस होगा, यक्का कहते हैं उर्दू में, इन इंग्लिश इट इज एस। तो हाउ मेनी एसेस विल बी देयर इन द डेक? 4 एसेस। हर कार्ड जो है वो 4-4 दफा होगा, पता है ना। क्वीन है तो 4 क्वींस होंगी क्योंकि हर सूट है। यस। 4 सूट्स, तो इन ईच सूट द सेम कार्ड विल बी देयर। क्वीन है तो सब में क्वीन होगी, किंग है तो सब में क्वीन होगी, एस है तो सब में एस होगा। ओके, तो देयर आर 4 एसेस इन द कार्ड इन द डेक एंड टोटल cards in the deck are 52. तो 4 by 52 is your answer, that is 1 by 13। इसको आप डेसिमल में जरूर कैलकुलेट कीजिएगा। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायमंड। डायमंड एक पूरा सूट है जिसमें कितने कार्ड्स होते हैं? 13। मैंने बताया था ना, हार्ट है, डायमंड है, फिर स्पेड है, क्लब है, तो दीज आर 4 सूट्स, और हर सूट में देयर आर 13 कार्ड्स इन दैट पार्ट। So the diamond is a complete suit, so there are 13 cards which are favoring, the 13 in the numerator, and total cards in the sample space are 52. Answer is 1 by 4, 0.25 हो जाएगा ये आंसर आपका। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? Are you all with me or half of the students are sleeping? Yes sir. यस सर। Sleeping? Yes. No, No, sir, not sir. sleeping, sir. आप सबने कहा yes sir. I ask you, are you sleeping? नो सर। सर जाग रहे हैं। इसी से पता चलता है कि you are sleeping, क्योंकि मैं पूछा No, are you sir. sleeping, आप कहते हैं yes sir। अच्छा चलो, जाग रहे तो अच्छी बात है, जागते रहोगे तो उसका ही फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन एस ऑफ डायमंड। अब बताओ, डायमंड एक सूट है, उसमें 13 हो गए। अब उस डायमंड का एस ले रहे हैं हम, एक ही पत्ता होगा ना इसका। डायमंड एक कलर ले लिया उसने, स्पेसिफिक कर दिया, बाकी 3 को छोड़ दिया। तो हाउ मेनी आर द फेबल केसेस? वन, ओनली वन कार्ड, डायमंड का एस एक ही होगा। तो 1/52 इज द आंसर। अ 4 और अ 6, कितने 4 होंगे जल्दी से बताओ। हर सूट में एक 4 होगा ना, 4 4 हो गए। और सिर्फ 6 कितने होंगे? वो भी 4 होंगे, है कि नहीं? हर पत्ता, हर नंबर जो है वो 4 दफा रिपीट होगा, बिकॉज दीज आर अवेलेबल इन एवरी सूट। तो 4 भी 4 दफा मिलेगा आपको और 6 भी 4 दफा मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए? 8। ओके, favorable cases are 8, 8/52. Answer is 2/13. Next part. A 4 और a club, कितने 4 होते हैं? जल्दी बोलो भाई, टोटल कितने 4 मिलेंगे आपको पूरे डेक में? सो गए। यस, अभी पिछले पार्ट में हमने 4 ही मिलेंगे। सर 8 ना, हर सूट में 4 होते हैं ना 4 सर? होते हैं। तो इतनी सर देर 4 सूट्स हैं। इतनी चार देर होंगे सर। 4 हो गए ना, 4s। ओके, जी सर। और अ क्लब, अब क्लब में कितने पत्ते होते हैं? जल्दी बोलो। क्लब में सर 4 13 होते हैं, लेकिन सर 12 काउंट 13 होंगे होते क्योंकि हैं एक सर। जोकर होगा। 13 होते हैं। सुन लो अच्छी तरह मेरी बात, ठीक है ना? क्लब में, डायमंड में, हार्ट में, स्पेड में, सब में 13 पे 13 होते पास होते हैं। हैं। अच्छा, अब मसला क्या है? उस क्लब का एक 4 जो है वो हम पहले ले चुके हैं कि नहीं? ले चुके। जब हम जी 4 सर। ले रहे थे, उस क्लब का एक 4 तो इधर आ गया ना हमारे पास। अब यस क्लब सर। में कितने हैं? अब क्लब में कितने पत्ते बचेंगे? 12। 12 सर। 12 12 ये और 4 ये, तो 12 + 4 कितना हो गया? 16 16। 16/52 कितना हो गया? 4/13। 4/13। नेक्स्ट पार्ट, अ 6 और अ स्पेड। 6 कितने होते हैं? 4 सर। 4 सर। 6 होंगे। स्पेड में कितने पत्ते होंगे? 13 सर। लेकिन 13 13 में सर। से 13 का स्पेड एक का निकाल देंगे तो पहले आ सर गया, 12। तो 12 उधर और 6, 12 और 12 + 4 कितना हो गया? 16। वही चीज है, 16 वही केस हो गया। 16/50। अ हार्ट और अ क्लब, बोलो हार्ट में कितने पत्ते होते हैं? 13 सर। इस और क्लब क्लब में भी 13। 13 सर। 13 ऐड करके 26 कितने हो होगा। गए? 20 26/52। कट कट आगे आ गया 1/2। ओके, अ रेड क्वीन, 2 होंगी सर। क्यों? दो। कौन कौन सी 2 होंगी? एक डायमंड में, एक हार्ट में सर। हाँ, तो फिर कहते हैं मैंने ताश कभी नहीं खेली। सर अभी अभी सीखा ना आपसे सर। तो सारी उम्र ताश खेलता रहे और अभी मुझे कह रहा है मुझे पता ही नहीं। सर कभी नहीं खेली। और क्वीनों को खास तौर पे देखता है, रेड क्वीन का है। देयर आर 2 रेड क्वींस एंड टोटल आर 52, तो आंसर इज 1/2। ओके, अ रेड कार्ड और अ 7, बोलो कौन बता रहा है जल्दी जल्दी। रेड कार्ड में कितने कार्ड होंगे? थोड़ी देर पहले कोई लड़की बता रही थी। हाँ, जल्दी बताओ। सर 26। 26। 26 से 2 सूट्स है ना जो 2 रेड हैं, कौन कौन से? हार्ट एंड जी डायमंड। सर। हार्ड एंड बहुत सारे रेड, तो 26 कार्ड तो रेड हो गए। और अ 7 कितने होते हैं टोटल? 4 होते हैं। जी हर सर 4 होते हैं सर। लेकिन इसमें से दो रेड 7 तो चले गए ना, एक हार्ड में चला गया। जी सर, तो 2 बचे। 2 बचे, तो कितने क्या हो गया? 16 ये रेड कार्ड नहीं नहीं सर, 20 ये 26 थे ना रेड कार्ड, उसमें से 2 माइनस कर दिए, 24 हो गए। और 2 इधर, और उधर से 4 ऐड कर दिए तो 28 हो गए, 28 हो गए। 28 ठीक करना है ना, 28 28/52। राइट डाउन द आंसर। ये अपना रेडियो बंद कर लो, ये रेडियो कौन चला के बैठ गया है? पता नहीं सर। तो इसको कब बंद कर ले। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज Scotty, a black card and a 10. बोलिए black card, how many black cards? 26 सर। 26. And a 10 कितने होते हैं? सर 4 होते हैं, अब 2 होते हैं, उधर लेकिन चले गए तो सर 2 चले गए। बचे। फिर वही कहानी जी है ना, सर, तो 28 ये सर 28/52 यानी कि ये हो गया। 28/52 1, वो उसको सॉल्व कर लेना।
ये लास्ट टू पार्ट्स की जी, सर। करेक्शन कर लेना, ठीक है। 28 Yes, by sir. 52 in both the cases. ओह Yes, sir. नहीं, ठहरो 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 ठहरो, ये जे पार्ट में है ना, ये और नहीं है, ये एंड है, देख रहे हो, जे पार्ट में क्या है, एंड है। एंड का मतलब है विच इज कॉमन इन बोथ द सेट्स। तो पहले सेट में ब्लैक कार्ड में 26 कार्ड्स हैं और 10 आर 4, लेकिन ब्लैक भी है और वो 10 भी हो, देयर आर 2 कार्ड्स, तो ये ठीक है। दिस आंसर इज ओके। 52 by 52, देखो दोबारा सुन लें all of you. The two sets you make, the first set is black card 26, the second set is a 10 4 cards. अब दोनों में जी, कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन, ओके, याद रखिएगा। Whenever the word or is used in probability, it means union, so you are to union the two sets. But if there is a word and means intersection, लिखते जाओ अपने साइड नोट्स पे कहीं लिख लो, and intersection means you are to take